आज यहाँ चंडीगढ़ में पंचकुला में हमारे यहाँ मॉनसून की पहली दस्तक सुनाई दी है। अच्छा लगता है और मॉनसून की बहुत ज़्यादा इंतज़ार होती है। मॉनसून इज़ टिपिकल टू इंडिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वैसे तो पूरे विश्व में मॉनसून जो है वो जानी जाती है और जानी इसलिए जानी जाती है कि जहाँ ओशंस का, सीज़ का टेम्परेचर जो है वो बनिस्बत ज़मीन के कम रहता है और ज़मीन पे जो हवा होती है वो ऊपर उड़ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए हवाएं बहुत वाइल्ड breezes is a soft word for soft winds, but yes, very high velocity winds when they move from oceans and seas to the land, so they bring with them so much of moisture। और ख़ास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में ये चीज़ देखी जाती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 80 लाख साल पुरानी कहानी है इंडियन मानसून की, एशियन मानसून की, जो ख़ास तौर पे इंडिया में जब उठती है तो बे ऑफ बंगाल से उठती है और अरेबियन सी से उठती है और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको साउथ से नॉर्थ तक 3-4 दिन लग जाया करते हैं। मैं इसलिए ये थोड़ी सी बैकग्राउंड दे रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ को हम रोमांचकारी एक सिहरन भरा एहसास कहते हैं, वो अगर किसी और साल के महीने में इतना नहीं आता है जितना मॉनसून के महीने में आता है। आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपको एक मिडिल शहरी माहौल का पढ़ूंगा पहले और फिर बारिशें गिरती रहीं की बात करूंगा और फिर मॉनसून के जो ज़्यादा रोमांटिक पहलू हैं उनकी भी जो है बात करूँगा। गालिब की बात करूँगा, मेरे अपने गांव के नाई मामराज की बात करूँगा जिसने रागनी, मैं कभी रागनी गाता नहीं हूँ लेकिन ये रागनी मुझे कंठस्थ है। मैं ये आपको सुनाऊँगा कि ये रागनी में उसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। बहरहाल अभी जितनी देर कुछ और लोग जुड़ते हैं इतनी देर में एक जो अंग्रेज़ी जो शहरी माहौल का मॉनसून का चित्र है, एक रेखा चित्र, वो एक मिडल की फॉर्म में है। आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप देखते जाइएगा। इस मिडल को सुनिए पहले। टिप टिप बरसा पानी। जनरली यू हैव टू प्ले हेविली टू एंजॉय लग्जरी विच इज़ बियॉन्ड योर मीन्स, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट कम योर वे एज गॉडसेंड एट अ टाइम व्हेन यू आर ईदर नॉट एक्सपेक्टिंग देम to happen or when you think you have grown mature enough to indulge in such silly, childlike and imprudent adventures. Imagine you're being in your stroll gear with the iPod's earplug inserted besides a phone in your pocket and all of a sudden it starts raining. You will stay back, definitely, for if at all you venture out, people might call you mad. I was on the other end of my strolling lap the other day when all of a sudden it began to rain. There was no indication of it, no gushy winds, no huddle of clouds in it and light up the sky, not even a dip in the temperature. All these things combine and conjure up to give you enough time to gather up and either rush for cover or hurry up to settle or even swathe yourself with whatever costing is available. After so many years, the first few drops hit me like hail. I too, in the initial reflex, looked for cover, but then I gave way to long cherished desire since childhood. बरसात में नहाने की. To drench myself in rain, and I paused in my stroll. I saw all around running helter-skelter, and as if it was a volley of bombs being hurled, and not sweet monsoon rain droplets. I began to feel the thrill of a cooling sensation down the spine, literally. Eyebrows started dripping, the nose tip held for a while and let go the watery dew. Lips became lipsy of each other then when I began also to taste the rain. I secured the Kenneth Cole watch Savan had bought me from Seattle, premium on the US-Canada border. It was being put to a waterproof test for the first time. Then I wrapped it
in a handkerchief my iPhone gifted to me by Sagar, but this time my laced sneakers had become fluffy floaters, literally, for they had overflowing water in them. I began to nearly gyrate, when, like kids, I splashed the accumulation in the puddles on the road. I even went a step sideways to thump my foot at it strongly, making a bigger splash for the enjoyment of a sheer escapade into experiencing exuberance bordering on madness. People from their terraces, verandas, and balconies looked at me as if an ostrich had strayed out of the zoo. Some urchins joined me in my fun. I encountered wet cats and dogs besides cows going on the road with bent necks as if they could take on the torrents with their pointed horns. Once in a while a car would rush past, making fetch me home unscathed by reckless rains, but I changed the route back home. As if during childhood, romance of rains filled me with an audacious indulgence into all that was forbidden for people of my age. The child in me was born again and made me frolic like one unplugged, uninhibited. All the pre-entry wife was waiting with a smile to say, "Look, you had your fill of the rain today." Towels in tow, slippers in place, and an extended tray to deposit my mobile phones, watch, and wallet make me a man again. Reined in, R-E-I-N-E-D, reined in. This was my experience when I, a few years back, enjoyed the rains in a city atmosphere and becoming a child once again, and seeking to take bath in rains and reliving those childhood moments. इसके बाद जो अंटे का मैं सीन बयान करूँगा वो आप में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. बहरहाल मॉनसून्स जो है अपने आप में, लेट मी थैंक ऑल दोज हु हैव जॉइंड सो फार. साहिल, हेलो. कौमदीप, सुनील छाबड़ा, साहिल वैद, प्रिंसिपल भूपेंद्र, संजीव अरोड़ा, नीतू सिंह, यू आर ऑल वेलकम. जो प्री मॉनसून होती है वो कुछ शावर्स होते हैं जो इंडिकेटिव होते हैं कि हाँ मॉनसून आएगा. कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि सर्दी गर्मी बेमौसमी बरसात भी होती है. वो भी इन द इंडियन कंटेक्स्ट जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है. और जून में ही, मई जून की जो गर्मी है उसमें बारिश की ऐसे इंतज़ार होती है, मॉनसून्स की ऐसे इंतज़ार होती है कि पूछिए ही मत. मॉनसून को मेरी दादी जो है मोहन सोहन कहा करती थी कि अरे मोहन सोहन आ गया. इनफैक्ट मॉनसून का जो एटिमोलॉजिकल डिटेल्स हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट पोर्चुगीज़ में मौसुआ बोलते हैं, मौसुआ, और पर्शियन में बोलते हैं इसको मौसीम, जिससे मौसम बनता है, और शायद डच में मॉनसून बोलते हैं, मॉनसून. सो मॉनसून्स हैव देयर ओन कॉलिंग. एंड हुआ क्या है, एक बार मैं एसपी था सोनीपत में, वहाँ के 2 किस्से बयान करता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग हैं. मैं अपने दफ्तर में बैठा जब 100-150 महिलाएं जो है वो नारे लगाती हुई आईं, और उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा पता करो भाई क्यों नारे लग रहे हैं. तो बताया मुझे आके जो ऑफिस ऑर्डली होता है उसने बताया कि साहब 100-150 महिलाएं हैं, वो बिजली की वजह से प्रोटेस्ट कर रही हैं. सो मैंने कहा ओके, ये तो मेरा काम नहीं है. एसडीओ के पास जाएं, एक्सीएन के पास जाएं, या डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं. मिस्टर खुल्लर और मैं थे. मिस्टर खुल्लर जो आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब के, हरियाणा के सीएम के. सो ही वाज डिप्टी कमिश्नर एंड आई वाज एसपी एट सोनीपत. सो अधिकारी उनको नहीं मिल पाया, तो मैं दफ्तर बैठा था, ये महिलाएं सभी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, और बारिश का टाइम है, और ड्रेन्स जो हैं दे हैव नॉट बीन येट क्लीन्ड, और बिजली चली जाती है तो हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है. एनीवे, मैंने कहा कि इससे पुलिस का तो कोई वास्ता नहीं है. तो वो कहने लगी जी कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो हम फिर सड़क आके जाम कर देंगे. मैंने कहा अब ठीक है, अब ये पुलिस का वास्ता हो गया कि लोग बाग अगर सड़क जाम करेंगे तो पुलिस खुलवाएगी.
बहरहाल मैंने उनको कहा कि मैं बात करता हूँ। मैंने एसडीओ को फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं शाम को आऊँगा 7 बजे के करीब और लाइट होनी चाहिए कॉलोनी में। सो एनीवे मैं भूल गया। मैं और कौमुदी जो है ना वो शाम को बैठे थे, इसी तरह से हमारी लाइट चली गई। जब हमारी लाइट चली गई तो मुझे याद आया कि वो महिलाएं तो हल्ला कर देंगी, रोड जाम कर देंगी। सो मैंने मोटरसाइकिल राइडर भेज के पता कराया। पता ये लगा कि जी वहाँ तो लाइट है। और फिर हमने सोचा कि इसको कैश एंड ऑन कर लिया जाए, क्यों ना नारे लगवाए। अच्छी बातें पुलिस वालों को जय जयकार करवाने के लिए बहुत कम मिला करती हैं। सो आई एंड माई वाइफ वी ड्रोव टू दैट कॉलोनी एंड द मोमेंट वी alighted out of our car there were slogans of Jindabad, 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 Jindabad. So this was a monsoon recall. Another monsoon recall from Sonipat was कि एक आदमी, बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई और यमुना में पानी एक ख़ास निर्धारित स्तर से ऊपर उठ गया और हुआ कि एक जुल्फी नाम का आदमी जो है वो यमुना के करंट्स में कहीं पीछे फंस गया, जो एक टापू सा बन जाता है। दोनों तरफ पूरा करंट जो है ना वो पानी का चलता है और ये कोई 100-150 मीटर लंबा करंट था जो किनारे के साथ साथ था, जो गांव के साथ साथ बह रहा था। अब जुल्फी उस तरफ है और हमारे पास SOS आता है जी कि एक आदमी जो है वो फंसा हुआ है यमुना में, टापू में, और आप उसको कुछ करिए। तो मैं और मिस्टर खुल्लर इन द नाइट, कोई 9-9:30 बजे का टाइम था, हम लोग उस गांव में गए यमुना किनारे और हमने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ जमा हो गई थी और जुल्फी जो है वो उसकी कोई खोज खबर नहीं। उसके बारे में ये था कि वो शाम को घर नहीं लौटा था जब टाइड कम था, पानी कम था, और जब वो आया, जब वो नहीं आया तो सभी लोग रेस्टलेस हो गए। बहरहाल मेरे पास 10-12 जवान जो थे वो उन्होंने एक नायाब आइडिया दिया। पुलिस वालों के पास बड़े नायाब आइडियाज़ होते हैं। सो उन्होंने एक नायाब आइडिया दिया कि साहब हम जाते हैं, तैर के ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं रिस्क नहीं लेने दूंगा क्योंकि योर लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट उसमें 4 जाबाज लड़के थे। वो कहने लगे साहब एक ट्रैक्टर की ट्यूब हमें दे दीजिए, हम अपने आप उनको ले आएंगे। बहरहाल सभी की एक कंसेंसस हुई, एक ट्यूब लाई गई, ट्यूब में हवा भरी गई और ये 4 आदमी जमुना के करंट को पार करते हुए टापू पे चले गए। और जब कोई 1 घंटे बाद देयर वर एंक्शियस आईज, एंक्शियस हार्ट्स, और हर कोई आदमी जो है ना वो जैसे सांस रोक के खड़ा था। कोई मूवमेंट उधर से दिखाई दे, कोई टॉर्च की रोशनी दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दिया था। बहरहाल थोड़ी देर बाद एक टिमटिमाती सी रोशनी कुछ पानी के सरफेस पे उभरी एंड वी हैड सम होप्स रिकिंडल्ड इन आवरसेल्व्स। और जब देखा कि करीब वो आ रहा है, हाँ, बेगा गन्नौर का किस्सा है। विनोद दैया, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। जनक वेलकम, उषा पांडे वेलकम। सो हम लोगों ने देखा कि जब वो करीब आ गया तो उसके ट्रैक्टर की ट्यूब के अंदर कुछ बिछा रखा था जिसपे 2 बत्तख, दो मुर्गी, 1 बकरी और खुद जुल्फी मियाँ। अब वो जैसे ही किनारे पे लगा तो लगा कि गांव वाले इसको पीटेंगे और पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद के फिर नारे लगे, डीसी साहब, एसपी साहब जिंदाबाद। बहरहाल हुआ ये कि जब डिप्टी कमिश्नर ने पूछा कि आपको कोई और इंतज़ाम चाहिए बरसात का या फ्लड्स का, तो गांव वाले हाथ जोड़ के कहने लगे साहब ऐसा है, नेक्स्ट टाइम जब भी फ्लड्स आएंगे या बरसात आएगी या जमुना चढ़ेगी तो कृपया इस जुल्फी को सबसे पहले अरेस्ट करके अंदर हवालात में डाल दीजिए। खैर, मुझे गालिब मियाँ का जो है वो संस्मरण याद आता है बारिश को लेके। गालिब ने एक मकान बनाया था और हवेली बनाई थी गालिब ने चांदनी चौक में, आज भी वो मौजूद है। उसके बारे में एक शेर कहा था कि एक घर बना लिया है मस्जिद के ज़ेर साया और ये आदमी कमीना हमसाया खुदा है। हुआ ये कि वहाँ बारिश एक बार दिल्ली में इतनी हुई कि सारी गलियाँ जो है वो नहरों की तरह से हो गई। तो गालिब ने जो है ना एक शेर कहा था, मज़ाहिया शेर है, मुझे याद आज तक, मैंने बाबूजी की किसी डायरी में पढ़ा था कि बरसात क्या हुई खुदा का कहर हो गई। बरसात क्या हुई खुदा का कहर हो गई और गली कासिम खां आलमी नहर हो गई। आलमी नहर सुएज कनाल को बोलते हैं कि बरसात क्या हुई खुदा का कहर हो गई और गली कासिम जहाँ
आलमी नहर हो गई। एक और शेर था गालिब का इसी संदर्भ में कि जब बारिश आ जाती है, बरसात होती है, तो कच्चे मकान, पक्के मकान, उनकी दरारों में, छतों में, दीवारों में घास फूस उगाता है और इस तरह से अगर उसको ना निकालिए तो छतें चूना शुरू कर देती। उस पर एक शेर गालिब ने कहा था, अपनी हवेली की तरफ देखते हुए जिसके ऊपर घास उगा था, कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बियाबा में हैं और घर पे बाहर आई है। सो दैट वाज इन प्लेन ह्यूमर। बड़े अच्छे अच्छे, बहुत ही दिल को छू लेने वाले, सिहरन पैदा करने वाले गीत हमें बॉलीवुड ने को लेके जो है वो मॉनसून को लेके दिए हैं। उन गीतों का मैं अगर जब बयान करूंगा तो उससे पहले एक और किस्सा मॉनसून को लेके ही और बारिशों को लेके ही। जब तक हमारी मैं एडिटर होता था NDRI करनाल में, बिफोर ज्वाइनिंग द पुलिस, जब पुलिस में सिलेक्शन हुआ तो मेरा एक बैचमेट और मैं चंडीगढ़ आए थे और हमें रात को रुकना था और हम लेट हो गए थे और मुझे किसी मित्र का या किसी और रिश्तेदार का ख्याल नहीं आया कि किसके पास हम जाके रुके, ओवरनाइट रुकना था। बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी और चंडीगढ़ में उस टाइम मेरे एक ही और जानकार थे जो हरियाणा रिव्यू के उस ज़माने में एडिटर हुआ करते थे। उनका पता मेरे पास था। सो बहरहाल मैं और रणबीर शर्मा हम लोग उनके घर चले गए और समय करीब 11 साढ़े 11 का था और हम लोग भीगे हुए थे बरसात में। और हमने जैसे ही नॉक किया तो अंदर से एक महिला ने दरवाज़ा खोला और मैंने एडिटर साहब का नाम लिया कि साहब वो घर पे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं है, प्रेस में गए हुए हैं। तो थोड़ी देर चुप्पी सी रही। मैंने कहा मैं सो सो हूँ और ये साहब वो हैं और अपनी इंट्रोडक्शन तारुफ दिया। तो कहने लगी कि आप अंदर आ जाइए। मैंने कहा नहीं हम लोग चलते हैं, आज हम लोग तो आए तो थे रुकने के लिए, माफ़ कीजिए, लेकिन तो वो कहने लगी कि आप नहीं आप अंदर आइए, आप रुकिए यहाँ। मैंने कहा अकेली महिला हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, एडिटर महोदय घर पे नहीं है। बहरहाल उस महिला ने एक ऐसी बात कही जो आज तक मुझे याद है और आज तक भी वो हमारे संपर्क में हैं। सोहनलाल जी उनका नाम था, एडिटर साहब का। मिसेस सोहनलाल ने मुझे कहा कि हमें कहा कि अगर मेरे भाई इस टाइम हिमाचल से रात को बरसात में आ जाएं और फिर कहीं और न जाएं तो आप क्या मेरे भाई से कम हैं? लीजिए हमने जो है ना वहीं अपनी अटैची रख दी और कहा कि ठीक है जी, हम लोग वहाँ रात को रुके। और रात को हमें नहीं पता किस टाइम सोहनलाल जी वापस प्रेस से आए, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह सोहनलाल ने हमें चाय ऑफ़र की तो हमारी जैसे आंखें कुछ ढूंढ रही थी। मैंने कहा मिसेस सोहन, तो उन्होंने जो है ना बात काट के कहा कि वो चली गई हैं, उनका जो है वो स्कूल होता है इस टाइम। सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लाइफ में, वो अगर एक मौसम के साथ आप जोड़ के देखते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। एक रोमांच, एक अजीब सी लिफ्टिंग आउट ऑफ वन सेल्फ, एक अजीब सी स्थिति, एक अजीब सा वातावरण, एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा एहसास जो बड़ा सुखद लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। और आप उस इंसिडेंट को या कहीं भी भूल भी जाइए तो भी आप जो है उसको गाहे बगाहे कभी ना कभी याद करते हैं तो आपके आगे वही चीज़ जीवंत फिर से हो जाती है। गीतों का मैंने जिक्र किया। गीत एक से एक जो है वो बॉलीवुड ने हमें दिए हैं, जो नॉस्टैल्जिक हैं, जो मासूम हैं, जो कसक भरे हैं, जो प्यार भरे हैं, जो मोहब्बत भरे हैं, जिनमें मिलन की, विलास की इच्छा है, विशाल की इच्छा है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजिए बुलाए, कितना प्यारा गीत है। बंदनी फिल्म का नूतन पे फिल्माया गया था कि सावन का महीना है, बाबुल को शी मोक्ष, ओ सजना बरखा बहार आई,
आप ये गाना जब भी आप सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बरसात का कोई भी पहलू ऐसा डायरेक्टर ने छोड़ दिया होगा, और जिसमें सलील चौधरी का म्यूज़िक था। वो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, बहुत ही खूबसूरत गीत ब्लैक एंड वाइट में। एक और गीत है तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है जैसे ये फिल्म थी मदन मोहन का म्यूज़िक था इस फिल्म में, मोहम्मद रफ़ी का बहुत ही नायाब गीत है तुम जो मिल गए हो, तो लगता है कि जहां मिल गया। और आपको याद होगा स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया गीत आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, और रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम के गीत सावन गाए। ऑल दीज सॉन्ग्स दे आर फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ फीलिंग्स। भीगे हुए आंचल को समेटो न बदन में, और जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, टिप टिप बरसा पानी। और मिलन के दो गीत थे, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, और सावन का महीना, यस मनदीप, हाय हाय ये मजबूरी, ये लाखों का सावन जाए, ये भी एक गीत था। बहुत से गीत आप कितने ही जो है वो यू कैन कीप एडिंग टू द लिस्ट। इससे पहले कि मैं मामराज की बहुत प्यारी जो है वो आपको एक कृति सुनाऊं, आज के दिन जो है मैं थोड़ा सा कोई सीरियस बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सीरियस टॉपिक्स नहीं ले रहा हूँ। और जो मेरी पुस्तक है रिमझिम के तराने, यस मैंने जिक्र किया प्रिंसिपल साहब, मैंने एक किताब लिखी और बारिशों से मुझे इतना स्नेह है कि बारिशें गिरती रहीं। ये मेरी एक किताब का जो है वो टाइटल है, ये टाइटल नज़्म है, टाइटल जो इसकी कविता है वो मैं अभी आपके आगे पढ़ूंगा। थोड़ी सी लंबी है लेकिन 5-4 मिनट में आपको आनंद ज़रूर आएगा मुझे लगता है। बारिशें जज्बात की, रंग भरे लम्हात की, गमज़दा दिन रात की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें अनजानों की, जानों व पहचानों की, बेकद्र कद्रदानों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें पुरवाइयों की, इंसान में फैली खामियों की, अल्हड़ सी नादानियों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें जोखिम भरी, तीरगी और गम भरी, फीकी और फिर रंग भरी, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें गुलजारों की, हंसते सब्ज़ाज़ारों की, गमगीन गम गुसारों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें सर्द धूप की, स्याह घटा रूप की, सूख चले कूप की, और बारिशें आवामों की, भीड़ की, वीरानों की, देवों और दीवानों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें नेक नामों की, दब रहे अफसानों की, चुप से खानदानों की, बारिशें गिरती रहीं। वेलकम अलका अरोड़ा। बारिशें रंगो जंग की, उसके साथ संग की, उड़ रही पतंग की, बारिशें गिरती रही। बारिशें उन ख्यालों की, उलझे से सवालों की, सुलझे से जवाबों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें बेकरारों की, टूटते सितारों की, बहते आबशारों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें मधुमास की, तिश्नगी की, प्यास की, अनछुए एहसास की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें तन्हाई की, बहुत सी गहरी खाई की, सिमटी सी अंगड़ाई की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें सब खुलूस की, ढोंग की, जुलूस की, हातिम की और कंजूस की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें गुनाह की, बाहों की पनाह की, सिसकियों की आह की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें काल के मारों की, बेवजह सी तकरारों की, फूल शूल खारों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें हवालाजातों की, सहूलतों और दिक्कतों की, उलझनों की, सोफतों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें बरसात की, भीगी हुई रात की, फैली कायनात की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें सब जुनून की, खौले हुए खून की, चैन और सुकून की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें इकरार की और कभी इनकार की, उससे सरोकार की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें बेइरादों की, सच्चे झूठे वादों की, सपनों की, अवसादों की, बारिशें गिरती रहीं। बारिशें बामुरादों की, खोई हुई यादों की,
सावन और भादों की बारिशें गिरती रहीं, बारिशें फैले जाल की, बिफरे हुए काल की, बीते हुए साल की बारिशें गिरती रहीं, बारिशें सौगात की, बीती हुई रात की, गुजरे से लम्हात की बारिशें गिरती रहीं, और बारिशें आमिल जुनूं, रगों में बहता खून, इसके लिए क्या कहूँ, बारिशें गिरती रहें, बारिशें गिरती रहें, बारिशें गिरती रहें. Thank you very much, Monica, for joining us, maybe a bit late. मुझे एक और वो चुटकुला याद आ जाता है बारिश की जब बात होती है. तो बुढ़िया बैठी थी किसी झोपड़ी में और उसकी छत टपक रही थी, तो एक शेर आके अंदर घुस जाता है और बुढ़िया उसको देख लेती है. बुढ़िया जो है उसको बोलती है कि इतना डर टपके का है उतना शेर का नहीं है. सो शेर जो है दुम दबा के भाग जाता है कि टपका कौन है. सो टपका जो है वो अपने आप में एक ऐसा एहसास है, जो लोग देहात के रहने वाले हैं, जो लोग गाँव के रहने वाले हैं, वो ख़ास तौर पे इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कच्ची छतें, कच्चे मकान, उनमें जब बरसात आती है तो क्या हालत होती है, क्या नहीं होती है. मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुफलसी में मेरे घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए. मुफलसी गरीबी को कहते हैं. दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, और लोगों ने मेरे सहन इससे पहले कि मैं मामराज की कृति आपको सुनाऊं, आज का दूसरा मिडल पढ़ के 3-4 मिनट में, और फिर बात अपनी ख़त्म करूँगा मामराज के गीत के साथ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल अप्रिशिएट इट, यू विल लाइक इट. जस्ट स्टे ट्यून्ड. मॉनसून इफेक्ट इन अंटा. मेरा गांव अंटा है, और अंटा में जब मॉनसून होती थी उस टाइम का माहौल एक बहुत ही रोचक, बहुत ही स्नेह भरा, एहसासों भरा हुआ करता था. खेत लबालब पानी से भरे होते थे और गलियों में गारा कीचड़ सब होता था. और हम लोग भी जब बच्चे थे छुट्टियों में गांव में जाते थे, पैरों की अंगूठे की उंगलियों को यूं गारा में गाड़ के ऐसे चला करते थे ताकि फिसल न जाए. बोरी जो है उलट के उसके कोने में कोना डाल के सर पे रखते थे ताकि छाता बन जाए. और मेंढकों की टर्टर और ऑल दीज वाटर क्रीचर्स अराउंड, दे यूज्ड टू प्रेजेंट अ वेरी म्यूजिकल एनवायरनमेंट, म्यूजिकल एम्बियंस. और हालांकि ये उस जो 15-20 रोज़ पहले, मानसून से पहले जो माहौल होता था मई जून का, जिसमें लू लगती थी और लू की गर्मी जो है वो पड़ा करती थी. और मेरी दादी, मुझे याद है, ये कहा करती थी कि ऐसा हो रहा है जनो चिल्ला की आँख लिकड़े हैं, मतलब इतनी गर्मी होती थी. एंड देन द मानसून्स वर क्वाइट अवेटेड. सो धान की रोपाई होती थी जब मानसून शुरू हो जाया करती थी, और उससे पहले पौध धान की ग्रीन, इट वाज अ ग्रीन, स्मॉल ग्रीन पैच amid the vast brown or camel colored earth all around. So I remember the ordeal experienced while reaching my village, especially during the rainy season. Anta was surrounded on all sides by water bodies like canals, drains, swamps, streams called Rajbaha, falls called Jhal, and openings called Mohand. Devoid of the drudgery of dryness, the damp environments made it an enchanting and romantic experience to be wading through. I remember having been lifted up on the shoulders of one who came to fetch us home from the railway station at Karsindu. The ride was hilarious, although I wanted to be put down. Yet instructions from my grandfather to bring me safe could not be just glossed over. It was a pretty 2-mile stretch to be traversed. An old drain called Purani Nadi lay in between. It didn't have any source, nor I think anyone knew where it ended. It had many spooky stories relating to happenings taking place there. It was never dry, and even during hot summers, there was knee-deep water in it. In rainy season, the water level touched the brawns of men on whose shoulders I crossed it. Purani Nadi gave a mixed feeling of awe and bewilderment. Since I dreaded approaching it,
At the same time, I cherished revisiting. The paddy fields ahead had water filled in them. A minor slip from the line boundary had us get wet from head to toe, but the fall was enjoyed too. There were two Rajbahas, one in the east and the other in the other west of Anta. The eastern one lay between Purani Nadi and Anta. It had its source at Mohand in the main canal. It had a grave and a structure called Sayyad under a banyan tree. The place was said to be haunted. People told stories of the ones meaning indiscretion to the Sayyad being beaten black and blue by this ghost. The western Rajbaha emerged near the Jhal, which was a regulator on the main canal going up to Jind and Hasi. Jhal Babu, the irrigation department officer, had grown beautiful marigolds at the site. The Rajbaha had some jamun trees too. I remember having a bath in it. At the same time eating jamuns, either found floating on the water or being dropped by a buddy on the tree. It was only on a sly that I went for such an adventure, since mother forbade me from indulging in any risky misadventure, I being her only son with 5 daughters. The siphon lay closest to the village. The site was a witness to many happenings concerning Anta's social life. For example, the seeing of ghosts was up to the siphon, or a chase of a mad dog ended there. Beyond the siphon on a tree lived a Sarkata Bhoot, a headless ghost, who had us in awe, especially while passing by the tree in the dark. The only respite then were sighting of glowworms. The only respite were sighting glowworms who moved almost in swarms. There was a vast stretch south of Anta which was a swamp called Nala, a sheet of accumulated water. It attracted migratory birds. I remember having seen a pair of flamingos, which the villagers called dinge. The squeak of a lapwing there still reverberates in my mind. Anta perennially seemed to have monsoons. So Anta had water all around. एक जिसे हम टटीरी कहते हैं गाँव में, टटीरी was known, it's a bird, in English you called it lapwing, and tatiri or lapwing is known for laying her eggs and then forgetting about where did she lay her eggs. So this tatiri used to be, it was found accusing anyone and inquiring from anyone that, did you do it? Did you do it? Did you do it? That was the sound it made. The tatiri or the lapwing sound was this. Did you do it? Did you do it? Did you do it? Means, did you find my eggs or where did I lay them? Can you please tell me? All right. आज का सेशन जो है वो काफ़ी भीगा रहा मेरे ख्याल में, और अब मैं आता हूँ मामराज की रागनी पे। मामराज मेरे गांव का एक नाई था। वो कहने को नाई था, लेकिन वो ऐसा एक माध्यम था पूरे गांव को इकट्ठा जोड़ के रखने में, और हर शादी ब्याह में, हर तीज त्योहार में उसकी भागीदारी होती थी। जब लड़कियां अपनी ससुराल जाती थी तो उनके घर जहां भाई भतीजे चाचा ताऊ नहीं थे तो वो सीधा दे के आया करता था सावन में, या इस तरह से कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड मैन अराउंड। ही हैड 5 sons and 3 daughters। और मेरे घर का जो हमारा घर था उसके बैक साइड में एक कच्चे कोठड़े में ये सभी लोग रहा करते थे। अब ये बारिश में, मानसून में, जब वो कच्चे कोठड़े, तो मामराज वॉज अ ग्रेट पोएट and he used to follow Chandar Badi and Dada Lakshmi Chand's line of rhyme scheme, and he'd written a Ragini on Nehru's death, which was quite popular in our village, and all those who knew Mamraj would ask him to recite that whenever he was found available. So जब बारिश हो रही है, मामराज के घर की छत टपक रही है, उस टाइम मामराज जो है वो अपनी छाती पे ऐसे चुटकी बजा के और छाती पे ऐसे टैप दे के
रागनी गाता था। और एक रागनी जो मुझे याद है, मैं तरन्नुम में आज तो नहीं गाऊंगा, फिर किसी दिन गा के सुना दूंगा, बट रागनी ऐसे थी कि बरसे राम करे चाड़े, बरसे राम करे चाड़े, तने भर दिए नदी और नाले, तू कर दे न दया मेरा कोठड़ा डया, बरसे राम करे चाड़े। दिस वॉज बामराज नाई, बरसे राम करे चाड़े, ही वॉज लाइंग ऑन अ कॉट। और जो जहाँ टपका लगा हुआ था पानी का, उसके नीचे उसने तसला, परात, बाल्टी ऐसे रखे हुए थे जिनमें पानी कुमुलेट हो रहा था। तो ही राइट्स, टपके नीचे भरा तसला पानी का भर गया, और मड़कड़ लागी छात देख के गात मैं डर गया, मारा तो कुछ ना चाले जोर उठे सामन के सिलोर, ये बादल काले काले, बरसे राम करे चाले, बरसे राम करे चाले। नॉट ओनली दिस, ही हैड सम प्रॉड्स पुट अगेंस्ट द फॉलिंग रूफ। जो कड़ियाँ होती थी, जो शतीर होता था, उसके नीचे भी एक लाठी या डंडा या कोई चीज़ लगा के उसको सपोर्ट दी हुई होती थी। तो महाराज का दिल्ली में बहुत ज़्यादा विजिट होते थे, क्योंकि मेरी बुआ जी वहाँ दिल्ली में रहती थी और उनके पास उनका आना जाना बहुत लगा रहता था। सो ही वॉज फेयरली अवेयर ऑफ जामा मस्जिद एंड लाल किलाज एंड चांदनी चौक्स एंड 12 खंबाज एंड ऑल। जब उसने देखा उसके मकान में, उसके घर में, उसके कोठड़े में उसने वो शतीर को सपोर्ट करने के लिए वो खंबा सा लगा रखा है, तो लुक एट हिज इमेजिनेशन एंड ऑल। वो कहता है 12 खंबे दिल्ली में के मेरे मकान में, 12 खंबे दिल्ली में के मेरे मकान में, इन खंबे आना छोड़ दूँ रहना छान में, इन खंबे आना छोड़ दूँ रहना छान में, आवे रेण का लटकार ना तो डैण का खटकार, आवे रेण का लटका, ना ही लागे मकड़ी जाले। छान में कभी मकड़ी जाले नहीं लगते, और कच्ची छतों में इस तरह का माहौल होता है। और 12 खंबे दिल्ली में के मेरे मकान में, इन खंबे ने छोड़ दूँ रहना छान में, ना तो डैण का खटका आवे रेण का लटका, ना ही लागे मकड़ी जाले। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।